میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری بیوی کے مرنے کی خبر ملی، تو میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اس قدر محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس کے ساتھ میں ابھی تک کھل کر اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی رخصت ہو جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کی چاہت کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن زندگی نے مجھ پر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چل بسی۔ لیکن بیوی کی موت کے بعد اصل کہانی کا آغاز ہوا، جس نے نہ صرف مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا بلکہ اصل رشتوں کی پہچان بھی کروا دی تھی۔ جیسے میری بیوی کے مرنے کی خبر ملی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ شدید غم غصے کے عالم میں اس کی ماں مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کے وقت تو بے حد خوش تھی اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ اب اس گھر سے بس اس کا جنازہ ہی نکلے گا، اور تو نے سچ میں اس کا جنازہ ہی نکالا۔ تجھے ذرا سی شرم نہیں آئی؟ یقیناً تو نے ہی ہماری بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے، اور وہ بیچاری کسی کو کچھ بتانے کی بجائے خود ہی گٹ گٹ کر مر گئی۔ میں چپ چاپ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کر سکا تھا، میں بھلا اس پر کیا ظلم کر سکتا تھا؟ ہم دونوں کے رشتوں میں بے حد تکلف تھا، میں چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب نہ ہو سکا تھا، کیونکہ وہ اس قدر شرماتی اور لبھاتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ خیر 3 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے احساس تک نہ ہوا تھا، لیکن اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی کیونکہ میری ساس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا ہوگا، تم نے میری بیٹی پر ظلم و ستم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ بھی ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے ہی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے اس کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری تھی، لہٰذا اسے یہیں پر دفنایا جائے گا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بیوی کے میکے سے ایک آدمی بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ اب ہم اسے کسی بھی صورت دفن ہونے نہیں دیں گے۔ تم نے اس کے جیتے جی بھی اس پر بے حد ظلم کیے ہوں گے، لیکن اب ہم اسے مرنے کے بعد بھی یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے یہاں سے میت کو نکال لیا، وہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ وہ میری بیوی تھی، وہ دفن چاہے جہاں بھی ہو، لیکن میں بھی ہمت کر کے ان کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے جب اسے قبر میں اتارا تو میرا روا روا کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، میں انہی خیالوں کے اندر گم تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے کی بہت زیادہ ضد کی تھی اور زور دیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا اندازہ بہت عجیب اور نفرت انگیز لگ رہا تھا۔ میں ہاتھ بڑھا کر قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تو جلدی جلدی سے قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور وہ آدمی بولا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور پھر مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ اور تم میاں اب اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے کیا؟ اب اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی بات سن کر بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن کیا کرتا؟ یہ موقع ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں جب چپ چاپ اپنے گھر آ گیا، گھر آ کر میرا دل پوری طرح سے رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کسی اچھے دوست کو اپنے دل کی ساری پریشانی سنا کر اپنے دل کا غم کچھ ہلکا کر لوں۔ تبھی میں نے جیب سے موبائل نکالنے کے لیے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا موبائل میری جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میں اپنا موبائل شاید کسی راستے میں پھینک آیا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ قبرستان سے واپسی پر میری جیب ذرا ہلکی پھلکی تھی،
मैं उस वक्त फ़र्क महसूस न कर सका था, लेकिन बात असल में यही थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में भूल आया था। फ़ोन के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ये बात तो आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। लिहाजा मैं अपने घर से निकला और सीधा वहीं पर पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की कब्र थी। वहां पहुंचते ही कब्रों के ऊपर और नीचे अपना मोबाइल तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं पर अपना मोबाइल फ़ोन नज़र नहीं आया। मैं परेशानी से इधर उधर देखने लगा। तभी एक बूढ़ा शख्स मेरे पास आकर पूछने लगा, क्या ढूंढ रहे हो बेटे? वह शख्स शायद उस कब्रिस्तान का गोरकन था। चचा, मैं अपना मोबाइल यहाँ कहीं भूल गया हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। अपना मोबाइल कब्र के अंदर तो नहीं गिरा गए? चचा ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, ये भी हो सकता है। दरअसल जब मैं कब्र के अंदर देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे गिर गया है जिसमें मेरी बीवी दफन है। लगता है अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। गोरकन बोले, मियाँ कैसी बातें करते हो? एक चंद हजार के बदले तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? खबरदार, अगर तुमने कब्र खोदने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी के सारे मायके वाले, सारे घर वाले उठकर यहाँ आ जाएंगे और वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात हरगिज मत करना। वह ये सोचेंगे कि उनकी बेटी को तुमने ही कत्ल किया है। वह शख्स बोले चला जा रहा था और उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। उस आदमी को मेरे मसलों के बारे में इतनी मालूमात कैसे हुई? मेरे ख्याल में वह एक गोरकन था, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि ये मेरी बीवी है और उसके घर वाले मुझसे इस बात को लेकर पहले से ही नाराज़ थे कि उनकी बेटी की शादी के बाद इतनी जल्दी मर गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बीवी के मैके का कब्रिस्तान है, इसलिए शायद शख्स को मेरे बारे में इतनी मालूमात है। मैं बड़ा हैरान था, लेकिन चुप था। उस वक्त दरगाह से मैं फ़ौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ कहने लगी, बेटा इस पर परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम ऐसा करो, दूसरा मोबाइल ले लो, खामखा परेशान होते रहोगे। अब अगर बीवी की वफात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज़्यादा परेशान होगा। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम जाकर नया फ़ोन खरीद लो। माँ की तमाम बातें सुनकर मैंने कहा कि अम्मा जान, इस मोबाइल पर तो मेरे काफ़ी सारे जानने वालों के नंबर मौजूद थे और इस मोबाइल के जानने जाने से मेरे वह सारे नंबर भी जाते रहेंगे। लेकिन चलो ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, आप मुझे पैसे दे दो, मैं 1 महीने के बाद वापस लौटा दूँगा। माँ ने मुझे पैसे दे दिए और मैं बाज़ार से जाकर एक नया फ़ोन ख़रीद लिया। मैंने अपने पास एक सिम भी रख ली, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे बेचैन कर दिया। रात का वक्त था और मेरे मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन जब अचानक से थोड़े सिग्नल नमूदार हुए तो मैंने पहला नंबर मिलाया। वह मेरे पुराने मोबाइल का था। शायद मैं सिग्नल के चेक करने के लिए बेइरादा तौर पर ऐसा कर रहा था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र के अंदर गिर गया तो वह ख़त्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया, इस बार बेल जाने लगी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में गया और वहाँ पर बेल जा रही है। लेकिन अगले ही लम्हे जो हुआ उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया गया था और फिर जो हुआ, मैं इस कदर हैरान परेशान हुआ कि फ़ौरन जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ भी हैरान थी कि वह हैरान होते हुए मुझसे पूछने लगी, माँ मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ, क्या हो गया है? तो मैं पहले तो मोबाइल का बहाना करके चले गए थे, लेकिन अब क्या आफत आन पड़ी कि रात के वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो। अम्मा मुझे जाना होगा, ये कहकर तो घर से निकल गया। लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके बाद मेरी माँ कितनी परेशान हुई होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल था और वह था मेरी बीवी का, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मैं खामोश नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की जांच तक तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी की कब्रिस्तान तक पहुंच गया था। लेकिन मैंने जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा तो गोरकी मुझे मिला।
अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने चले आते हो? गुस्से से बोला गोरकन मियाँ। आपका क्या काम है? कब्र खोदना। आप अपने काम से काम रखें। मुझे से बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अरे मियाँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ, तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता? मैंने गोरकी को सारी बात बता दी। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आया। इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से ही है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों के पास जाकर इसके बारे में मालूम करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कुछ बोलूँगा तो वह ख़यानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर मालूम करो। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब मैं गोरकी की सारी बात सुनकर समझ चुका था कि मुझे कोई बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए कि शायद उसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी जिस वजह से वह पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। लिहाजा मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान से होकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, बल्कि अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वह सब लोग एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर के बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था और वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए मैं चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुँच गया जहाँ बैठकर वह लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि उन सबके चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। मुझे लगा वह अब उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वह बात कर रहे थे मेरी बीवी के बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। तभी मेरा हाथ वहाँ पड़ी एक प्याली पर लगा। प्याली गिरकर टूट गई और तभी सबकी तवज्जो मेरे ऊपर आ गई। वो लोग मुझे यूँ देखने लगे जैसे मैंने उस घर में चोरी कर ली हो। बेटा, तुम यहाँ कैसे हो और कब आए? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मी जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपनी सास के चेहरे पर एक उम्मीद भरी नज़र डाली। हाँ बेटा, आओ, तुम्हारा इंतज़ार था। मेरा इंतज़ार? मगर वह क्यों? मैंने हैरत होते हुए अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं, क्या करें। तुम्हें तो मालूम है कि मैं एक मामूली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आया है। ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है। कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को कहीं से ढूंढवाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वह भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी? तुम जानते हो ना कि काफ़ी अरसे से हमारी उनके साथ नाराज़गी चल रही है, लेकिन अब इस मौके पर हम दोनों ख़ानदान वाले एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। सास की ये बात सुनकर मैं अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको अपना मसला बताने आया हूँ। बेटे, मसले तो चलते ही रहते हैं। मेरी सास ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे वही करूँगी। मैंने अपनी सास के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा। वहाँ से एक और जिम्मेदारी लेकर मैं वापस अपने घर आ गया। अपनी बीवी की कब्र खोदना चाहता था और चाहता था कि एक बार उसकी कब्र खोलकर अपनी तसल्ली कर लूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ सुना था और जो कुछ जानता था, ये सब सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि अपनी बीवी की कब्र खोलूँ और उसकी कब्र को सही करूँ, लेकिन कोई मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया था। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत ज़रूरी लग रहा था। रात के 2 बजे घर के सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वह गोरकन जो बार बार मुझे मना कर रहा था, वह भी उस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको लगता होगा कि अब मैं थक हार कर चुप होकर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतज़ाम मुकम्मल किया। तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोदना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई कि कब्र की मिट्टी काफ़ी नरम थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो कब्र की सील को हटाने में मुझे 5 से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं भी जोश में था कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की सीलें हटाई तो मुझे एक और हैरत का झटका लगा। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे।
मैं इस कदर हैरान और परेशान था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि अब क्या करूं, हंसूं या फिर अपनी बीवी का मातम मनाऊं, क्योंकि सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना मेरी बीवी थी और ना उसका कफन था और ना ही मेरा मोबाइल फ़ोन था। मैं तो अपना फ़ोन ढूंढने आया था, लेकिन एक नया किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने अपना फ़ोन अपने कान से लगाया तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। इस बात से पहले मुझे लगा जैसे मेरा मोबाइल कवर के अंदर नहीं बल्कि मेरा फ़ोन कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी तो कुछ देर तक ऐसी आवाज़ें आती रही जैसे हवाओं के झक्कड़ चल रहे हों। इसके बाद मेरे कानों में से एक ऐसी आवाज़ पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अजाब में है और जब तक मैं उसके नाम का कर्ज अदा नहीं कर देता तब तक वह यूं ही तड़पती रहेगी। शायद मैं ये सब सुनकर बेवकूफ़ बन जाता, लेकिन फिर मैंने ये सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू में बात नहीं कर सकते। वह तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज़ मुझे फ़ोन पर सुनाई दी। ये चीज़ कोई ड्रामा रोल लगती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों ने कब्र के अंदर कैमरा और माइक रखने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक किसी की आवाज़ किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। ये अल्लाह का एक राज है और अल्लाह खूब जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कब्रिस्तान में से फरिश्ते की आवाज़ कोई इंसान सुन ले। बस वही से मुझे शक बढ़ गया था और मैंने अपनी बीवी की कब्र खोदने की ठान ली थी। और फिर जब मैंने कब्र खोदी तो मुझे कुछ भी न मिला, और ये देखकर मैं अपनी बीवी के घर वालों के पास चला गया। मैंने कहा कि अपनी बीवी की कब्र मैंने खोदी है, लेकिन मेरी बीवी वहाँ उस कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। ये सुनकर मेरे ससुराल वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मुझे बेहुदगी करने की किसने कहा था। वो लोग मुझे मारने पर तुल गए थे और वे इस कदर की आवाज़ में बात कर रहे थे कि मैं उनसे डरने लगा था। अपनी बीवी के बारे में तो कभी बुरा सोच ही नहीं सकता था, लेकिन ये बात उन लोगों को कौन समझा सकता था। उन लोगों को तो मैं जालिम जल्लाद कसाई लग रहा था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से ज़्यादा बात करना इसलिए मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वह तो लड़ने झगड़ने और मर मिटने पर तैयार हो गए थे। ऐसे लोगों से कितनी भी बात करना वह मेरी बात कभी न सुनते। बाकी सब काम छोड़कर अब मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के उस कजिन पर शक था। वह भी घर से उसी दिन गायब हुआ था जिस दिन मेरी बीवी फौत हुई थी। खैर मैं पूछता पूछता बस अड्डे पर पहुंचा और वहां जाकर मैंने अपनी सास के भांजे के बारे में बताया। छोटे गांव के भी अपने फ़ायदे हैं। अब ये बात मेरे लिए ज़्यादा हैरान न थी और मैं उसका पता पूछते पूछते उस तक कैसे पहुंचा ये एक अलग कहानी है। एक छोटी सी तंग गली में किराए के मकान में रहता था और आज मुझे उसको ढूंढते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। पूरे 1 हफ्ते के बाद उसके घर को ढूंढने के बाद जब मैं उसके दरवाजे के सामने खड़ा दस्तक देने वाला था तो मेरे दिल में आने वाले तमाम सवालों का जवाब मुझे पहले से ही मालूम था, जबकि कुछ सवालात मेरे जहन में उठ भी रहे थे। मैं वह सब उससे पूछना चाहता था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने जो मंजर देखा वह मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दरवाज़ा खोलकर सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी खड़ी थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका हो गया। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन मैंने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे घसीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाने लगी। वह शायद अपनी गली वालों के सामने मुझे गुंडा करार करना चाहती थी, लेकिन मैंने सबको ये कहकर चुप करवा दिया कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे यूं ही यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। वह सब लोग बहुत हैरान थे और मेरी बीवी के चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा जाता था। मैंने लादकर उसे गाड़ी के अंदर फेंका और पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम तो मर गई थी। वह रोने लगी और कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, खुदा का नाम मत लो, तुमने उसे नाराज़ करके ये रास्ता इख्तियार किया है। अब बताओ कि तुम्हें क्या सज़ा दूँ। मेरी बीवी हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि पहले एक बार आप मेरी बात सुन लें, मैं आपको सब सच बताऊंगी। अगर तब भी आपको यकीन ना आए तो आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। मेरी बीवी ने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो मैं भी चुप हो गया। अब मैं उसे क्या कहता
करता और क्या सज़ा देता। उसने बताया कि वह जब से बड़ी हुई है उसके घर में उसके ख़ानदान वालों का आना जाना लगा रहता था। उसका कज़िन था, उसकी खाला का बेटा। मेरी बीवी का कज़न अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। उसका नाम नज़ीर था। नज़ीर के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी बढ़ी और नज़ीर ने उसे लालच दिया कि उसे शहर में मॉडलिंग करवाने के लिए ले जाएगा और वो पैसा कमाएगी, मशहूर हो जाएगी और घर में गुर्बत ख़त्म कर देगी। उसे अपने हवस का निशाना बनाया और साथ ही उसकी तस्वीर भी बनाई और अब उसकी काफ़ी तस्वीर बन गई तो वह बेचारी मजबूर हो गई थी और उसकी बात मानने लगी थी। उसकी माँ को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने उसकी शादी मेरे साथ कर दी, लेकिन उसके भांजे ने फिर भी मेरी बीवी का साथ नहीं छोड़ा। वह कभी मेरी बीवी के घर आता और कभी मेरे घर आता। उसने मेरी बीवी को सख्ती से मना कर रखा था कि तूने अपने शौहर के पास नहीं जाना। यही वजह थी कि मेरी बीवी 2 हिस्सों में बट गई थी और वह उस शख्स की बातें भी मानती और मेरे घर में भी खुश रहती थी। मैंने उसकी कहानी सुन के उसको माफ़ कर दिया और उसको अपने घर ले गया। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।